Good morning, friends. Today we are going to talk on a topic or class called Value Education for Class 10th students. Why do we need value education in our school, higher secondary, and in colleges? To understand what is the value of life, how can we succeed in our life, can have happiness, prosperity, peace, harmony, brotherhood in the society, and how can we protect our nation to protect ourselves, our family, our society, our fellow brothers and sisters? That is the reason we need value education in the schools. Ideological construction or formations take place while the students are in class 6th and it goes up to class 12th. This is a period of adolescence and pre adulthood from 13 to 17, that is adolescence period. That is the most important and vital age group in human's life. When the emotions are very high, intelligence quotient is very high, memory power is very high, and whatever we teach the students, the adolescents, they learn fastly, easily, and those learnings remain forever for a very long period, and that shapes the career of the individual, the adolescent, when he or she becomes adult, and then he or she becomes a person of importance, person of value for himself or herself, for the family he is born in or she is born in, for the society, for the nation, and for the globe as a whole. So, apart from having knowledge on academic subjects which are traditional, conventional, one subject is introduced in school, that is value education. That improves the personality of the adolescent, modifies the behavior of this adolescent, which suits to the individual, to the parents, to the society, to the nation. And the adolescent is also able to understand the value of himself or herself, along with the value of the society, of the traditions of the family, of the value and sovereignty of the nation he or she is born. That is the reason we need to have value education in each class, probably from class 6th. When a child is able to understand, he or she starts reading, writing, understanding the topics he or she
is taught. So, value education for class 10th, we are going to discuss on today. Value education for class 10th students is crucial in shaping their moral, compass, emotional intelligence, and social responsibility. Here are some key aspects of value education for class 10th students. Importance of value education, character building. Value education helps students develop a strong moral character essential for making informed decisions and building strong relationships. What is intelligence? We call emotional intelligence. Value education fosters emotional intelligence, enabling students to understand and manage their emotions, empathize with others, and develop healthy relationships. Now, let us know about social responsibility the students are to be taught and trained in, and the habit is to be inculcated in them. Value education promotes social responsibility, encouraging students to contribute positively to their communities and society at large. What are the key values for class 10th students? Respect and empathy, treating others with respect, kindness, and empathy, regardless of their background, culture, or beliefs. The second is honesty and integrity, demonstrating honesty, integrity, and transparency in all aspects of life, including academics, relationships, and personal conduct. Responsibility and accountability, taking responsibility for one's actions, being accountable for mistakes, and learning from experiences. Let us know about compassion and service, the key importance of value education, cultivating compassion and a willingness to serve others, contributing to the greater good of society, teaching methods, interactive sessions, engaging students in interactive sessions, discussions, and activities that promote value based learning. Real life examples, using real life examples and case studies to illustrate the importance of values in everyday life. Storytelling and role playing, utilizing storytelling and role playing to teach values and promote empathy and understanding. Now, what are the benefits of value education to the students, to the families, to the society, to the nation, and to the globe? Holistic development. Value education contributes to the holistic development of students in passing their emotional, social, and moral growth. Better decision making. Value education enables students to make informed, ethical decisions that reflect their values and principles.
Positive relationships. Value education helps students build positive relationships with peers, teachers, and family members based on mutual respect and understanding. By incorporating value education into their curriculum, class 10th students can develop essential life skills, build strong relationships, and become responsible and compassionate individuals. So, friends, we are going to learn whatever we have explained just now in Hindi also. वैल्यू एजुकेशन है क्या? हमें वैल्यू एजुकेशन क्यों सीखना चाहिए? हमारी सफलता में वैल्यू एजुकेशन का क्या योगदान है? और यह किस तरह से व्यक्ति को, स्टूडेंट्स को भी, परिवार को, समाज को, देश को और विश्व को एक अच्छी अनुभूति देता है और हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं, ऐसी दुनिया बनती है जहाँ हम मानव, दानव और देवताओं में फ़र्क कर पाते हैं। मानव कौन है? वह जो खुद खुश रहता है, सुखी रहता है और दूसरों के सुख और दूसरों की खुशी की कामना करता है और हो सके तो सहयोग भी करता है। दानव कौन है? दानव वह है जो केवल और केवल अपनी खुशी, अपने सुख, अपनी चिंता करता है और दूसरे के हक को छीन लेता है। दूसरे के दुख में वह खुश होता है और दूसरे की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती और वह उसे तंग करता है, छीनने की कोशिश करता है। वह जो भी करता है वह अपने लिए, न उसके परिवार के लिए वो सही होता है, न उसके समाज के लिए, न उसके देश के लिए, हम सब के देश के लिए और न ही विश्व के लिए। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो देवता। ऐसे लोग समाज में, परिवार में, देश में, विश्व में बहुत कम होते हैं जो अपनी खुशी, अपना सुख न्योछावर कर देते हैं दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे के सुख के लिए और अपने हिस्से में उदासी, दुख वो ले लेते हैं और ऐसे लोग दुनिया में देवता बन जाते हैं, अमर हो जाते हैं, महान बन जाते हैं। तो हम न देवता बनने की कैटेगरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि वह बहुत ही कठिन कार्य है। हाँ, कुछ लोग बन सकते हैं। हमें क्या नहीं बनना चाहिए? वह है हमें दानव नहीं बनना चाहिए। हमें किसी की उन्नति में, किसी की खुशी में, किसी के सुख में बाधा नहीं बननी चाहिए। चाहे वह हमारा परिवार हो, चाहे वह हमारे मित्र हों, चाहे वह हमारे रिश्तेदार हों, चाहे वह हमारा समाज हो या फिर देश हो या फिर विश्व हो, जहाँ भी आप हैं। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं वैल्यू एजुकेशन के ज़रिए। हम जो भी सीखते हैं, जो भी सीखते हैं स्कूल में, घर में, आसपास में, वह सारी चीज़ें मिलकर एक वस्तु का निर्माण करती हैं, वह है शिक्षा, एकेडमिक्स। और ये हमें क्या करता है? ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन, ये ज्ञान जब हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, विश्व के लिए उपयोगी बना पाते हैं तो यह एक
बहुमूल्य निधि बन जाती है, एसेट बन जाता है, एक संपत्ति बन जाती है, हमारी सफलता का ये कारण बनता है। तो शिक्षा में जो प्राप्त ज्ञान है, इंफॉर्मेशंस है, उसको हम किस चीज़ से बांधेंगे और सही वस्तु का निर्माण कर पाएंगे जिससे हमारी सफलता सबके काम आए, हमारे काम आए, हम सर उठा के जिएं, हमारे माता पिता का सर हमारी वजह से नहीं झुके, समाज का सर हमारी वजह से नहीं झुके, देश का सर गर्व से ऊंचा रहे, हम ऐसा करें और फिर उसका लाभ पूरे विश्व को मिले। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं हमारी जो शक्तियां हैं उसका सही इस्तेमाल करते हुए। मनुष्य के अंदर कितनी शक्तियां हैं और कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? फिजिकल पावर, जिसको हम फिजिकल कोशिएंट भी कहते हैं, शारीरिक शक्ति, स्वास्थ्य हमारा। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम खुश होते हैं, और जब हमारे चेहरे में खुशी होती है तो दूसरे लोगों की तरफ देखकर हम मुस्कुराते हैं। हमारी मुस्कान, हमारे स्वस्थ स्वास्थ्य, हमारी खुशी को देखकर दूसरे भी खुश होते हैं, और इस तरह से हम खुशियाँ बांटते हैं। हम जब स्वस्थ होते हैं तो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने लिए अच्छा सोचते हैं, जो कार्य करते हैं हम उसको इंजॉय करते हैं, उसमें आनंद की अनुभूति करते हैं, और इस तरह से हम जो भी करते हैं मन लगा कर करते हैं। और जब कभी विकृत मानसिकता की स्थिति उत्पन्न होती है, जब हम दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि फिजिकली या मेंटली हम बीमार हैं। दूसरी शक्ति है मेंटल पावर, इंटेलिजेंस कोशिएंट। यह ऐसी शक्ति है जो आपका दिमाग उसको निहित करता है, उसके अंदर होती है ये शक्ति। आपकी सीखने की शक्ति, आपके सीख को, आपने जो सीखा है उसका इस्तेमाल करने की शक्ति, स्मृति, आपकी मेमोरी, ये सब मिला करके आपका इंटेलिजेंस कोशिएंट का निर्माण होता है, जिसमें आप एकेडमिक्स में, प्रोफेशन में और अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं। तीसरी शक्ति है सोशल सोशल कोशिएंट। वो क्या है? इंटरेक्शन विद द पीपल इन द सोसाइटी। आपके आसपास में जो लोग हैं उनके साथ आप कैसी बातें करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने इमोशन को कितना कंट्रोल कर पाते हैं और उतना ही इमोशन निकाल पाते हैं जिससे दूसरों को नुकसान न हो। आपके पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस दूसरों को खुश करते हैं, आपको भी खुश रखते हैं। प्यार, भाईचारा, दूसरों की मदद करने की भावना, ये सारे पॉजिटिव एटीट्यूड है, इमोशंस। नेगेटिव क्या है? आपको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, जिससे आपका और दूसरों का नुकसान होता है। ईर्ष्या, नफरत, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपको तो नुकसान करते ही हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सोशल कोशिएंट में हम यह सीखते हैं, हमारी इस शक्ति की वजह से ये संभव होता है कि हम नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाते हैं और स्वयं खुश रहते हैं, अपने आसपास के लोगों को खुश रखते हैं, परिवार को खुश रखते हैं। फिर देश के लिए हम ऐसा काम करते हैं कि देशवासियों को खुशी होती है, और फिर ग्लोबली अगर संभव होता है तो हम खुशियाँ बांटते हैं। और फिर चौथी शक्ति होती है स्पिरिचुअल कोशिएंट। स्पिरिचुअल रिलीजन के संबंध में नहीं है, यह डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, रेशनलिज्म, तार्किक शक्ति, आपकी तर्क करने की शक्ति, लॉजिकल पावर, जिसमें आप किसी भी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं और रिएक्ट करते हैं और डिसीजन लेते हैं। सही डिसीजन सही समय में, सही मात्रा में, सही लोगों के लिए जब लिया जाता है तो सफलता आपके कदम चूमती है।
तो ये सारी चीज़ें जो पावर हैं, इन सभी पावर को संतुलित रूप से, बैलेंस्ड तरीके से जब हम उसको डेवलप करते हैं और डेवलप करने के दौरान हम जब वैल्यू एजुकेशन की मदद लेते हैं, तो ये शक्तियाँ बड़ी ही पावरफुल हो जाती हैं, अपने आप में बहुत शक्तिशाली बन जाती हैं, और फिर आपके जीवन में इनका बहुत बड़ा महत्व हो जाता है, और फिर हम आगे बढ़ने लगते हैं। साथियों, ये बातें, ये ज्ञान, यह जानकारी हमारे स्टूडेंट्स को जब तक सही समय में नहीं दी जाए, अर्थात जब बच्चों में सीखने की भावना अधिक होती है, योग्यता अधिक होती है, कैपेबिलिटीज़ अधिक होती है, मेमोरी पावर अधिक होता है, जिज्ञासा अधिक होती है, जब उनका माइंड लगभग प्योर होता है, इम्प्योरिटीज़ उसमें गई नहीं होती हैं, या फिर अगर गई हैं तो वो निकल जाती हैं। तो ऐसा दौर जो होता है वो 13 to 17 होता है, जब बच्चे 8वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 7वीं 8वीं में जाते हैं, बल्कि यह 12वीं क्लास से शुरू हो जाता है, 11वीं से, जब बच्चे हमारे 6 में चले जाते हैं, 6, 7, 8, 7 तक तो चाइल्ड ही कह सकते हैं उनको। 12-13 साल की उम्र में एडोलसेंस का पीरियड शुरू हो जाता है, जब वो 7th क्लास में चले जाते हैं, और फिर ये जाता है अप टू 17th ईयर। स्पेशली 16-17 में भावनाओं की, उनकी शक्तियों की बाढ़ होती है, जब हमें उनकी भावनाओं को नियंत्रित करना होता है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इमोशन के ज़रिए, ताकि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सकें। इसलिए यह समय ऐसा होता है जब हम वैल्यू एजुकेशन देते हैं। हम क्या सिखाते हैं? हम उन्हें यह सिखाते हैं कि आप अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति लॉयल्टी कैसे दिखाएं, ट्रस्टवर्दी कैसे हों। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे निडरता से, बिना लालच के करें, और वह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए सही साबित हो, पॉजिटिव हो, अनुकरणीय हो। तो यह तभी संभव है जब बच्चों को हम टीचिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस, मोटिवेशन, ये 5 चीज़ें हम दें। वैल्यू एजुकेशन में ये सारी चीज़ें, सारे प्रकरण शामिल होते हैं। हम जो पढ़ाते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह प्रैक्टिकल्स के ज़रिए, केस स्टडीज़ के ज़रिए वैल्यू एजुकेशन में बताया जाता है। फिर हम उनको गाइड करते हैं कि हम वैल्यू एजुकेशन के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद को, जो सही मकसद हो, प्रीसियस गोल हो, हमारा लक्ष्य हो, वहाँ तक हम कैसे जा पाएंगे, और हम जाते हुए उस रास्ते में जब बाधाएं आती हैं तो हम उसको टैकल कैसे करते हैं, हम समाज से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम परिस्थितियों में कैसे अपने आप को जोड़ते हैं, और फिर हम उन परिस्थितियों से कैसे उबर पाते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं। और इस तरह से फिर हम वहाँ पर कभी कभी रास्ते में चलते हुए जब हम अपने गोल की तरफ जाते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो हम कभी कभी कमज़ोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारी शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। काउंसलिंग उस समय आपको उन शक्तियों को वापस लाने में आपकी मदद करता है, और फिर जब आप उन शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ से फिर अधिक शक्तिशाली बनने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और फिर कंटिन्यूअस गाइडेंस, एक मैप की तरह आपको गुरु, मेंटोर
मोटिवेटर आपको गाइड करता रहता है और फिर वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो यह था आज वैल्यू एजुकेशन क्लास 10th के लिए स्पेशली, कि हम उनमें ऐसे क्या गुण डालें, शिक्षा के ज़रिए क्या मूल्य डालें, ताकि वह जब स्कूल से निकलें, कॉलेजेस में जाएं और कॉलेजेस से निकलें तो अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम दे सकें, सफल व्यक्ति बने और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से इतने सक्षम हों कि उन पर समाज को, परिवार को, देश को, बल्कि तो पूरी दुनिया को गर्व हो। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम लाल मोहन रजक, फ्रीलांसर एंड ऑथर का मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू सो मच।